یسایہ اس کا 14واں باب 12ویں آیت سے 15ویں آیات تک۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ خدا نے چار دیش کے یہ میں انسان کے نہ آنکھوں میں ہے نہ زبان میں، یہ دل کے اندر ہے۔ یہ میں نہ انسان کے نہ آنکھوں میں ہے نہ زبان پہ، یہ میں دل کے اندر ہے، ذہن سے لے کر سر کے پاؤں تک، پر اس کا اثر ذہن سے لے کے سر کے پاؤں تک ہے۔ جب یہ میں انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے، جب یہ میں انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے، انسان رہنے نہیں دیتی، اس کو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی۔ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں۔ خدا نور ہے، خدا نور ہے، اس کا جسم نہیں، اس کا جسم نہیں، کوئی صورت نہیں۔ خدا محبت ہے، اس کا کوئی شکل و صورت نہیں، خدا روح ہے۔ تو رومیوں کے خط میں افسیوں کے خط میں اس کا خدا نے نقشہ دیا ہے، افسیوں کے خط میں خدا نے اس کا نقشہ دیا ہے۔ خدا سچا ہے، خدا راست باز ہے، خدا پاک ہے۔ یہ تین صفات تھی، آپ نے پیدا کی، یہ تین صفات آپ نے پیدا کی آدم میں۔ آؤ ہم انسان کو خدائے سلوس تینوں اکٹھے، آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنائیں۔ تو کیا صورت ہے؟ خدا پاک ہے، ہمیں پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا سچا ہے، انسان کو سچا دیکھنا چاہتا ہے۔ رومیوں کے خط میں لکھا ہے، جھوٹا ٹھہرے خدا سچا، ہر انسان جھوٹا ٹھہرے خدا سچا۔ کچھ سچا بن کر دکھائے، کوئی سچا بن کر دکھائے اپنی زبان سے۔ یہاں بائبل اسٹڈی ہو رہی تھی، بشپ عنایت بھٹی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک آدمی مجھے جھوٹ سے بڑی نفرت ہے، ایک آدمی کہتا مجھے جھوٹ سے بہت نفرت ہے۔ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، بڑا کفر اور کون سا ہے؟ اس سے بڑا کفر اور کون سا ہے؟ وہ آدمی باہر چلا گیا۔ یہ سے کوئی بڑا مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، غلط ہے۔ تو خدا یہ تینوں صفات ہمارے اندر دیکھنا، خدا یہ تینوں صفات ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ آسان نہیں۔ یہ میں لوسیفر کے اندر تھی، یہ میں لوسیفر کے اندر تھی، وہ دوسرے فرشتوں کو نظر نہیں آتی تھی، وہ دوسرے فرشتوں کو نظر نہیں آتی یہ تھی۔ آسمانی کوائر کا انچارج تھا، یہ آسمانی کوائر کا انچارج تھا، بڑے راگ تھے اس کے پاس، بڑے راگ تھے اس کے پاس۔ آسمانی کوائر، آسمانی کوائر، ہیکل کی کوائر 4000 تھی، ہیکل کی کوائر 4000 تھی، آسمانی کوائر آسمانی کوائر لاکھوں کے لاکھوں کے حساب حساب سے۔ خدا اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، خدا اپنی تعریف سننا یہی چاہتا ہے، بیماری انسان میں ہے، اور یہی بیماری انسان میں ہے۔ میں بھی مشہور ہونا چاہتا ہوں، میں بھی مشہور ہونا چاہتا ہوں، یہ پھر خدا کے برابر ہوگا۔ یہ پھر خدا کے برابر انسان ہے۔ اپنے مشہور ہونے کے لیے تو انسان اپنے مشہور ہونے کے بڑے لیے بڑے کارنامے کرتا ہے، بڑے بڑے کارنامے کرتا ہے، ناکام ہوتا ہے۔ ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ میں اس کے اندر موجود تھی، یہ میں اس کے اندر موجود تھی، ذہن میں، آنکھوں میں، زبان میں، پورے جسم میں خون رچی ہوئی، پورے جسم میں خون میں رچی ہوئی تھی۔ میں تو خدا کہتا ہے، میں بولو دوبارہ، خدا 12ویں آیت، 12ویں آیت سے، اے صبح کے روشن ستارے، اس کا کتنا نام لیا، اس کا کتنا اچھا نام لیا ہے، اے صبح کے روشن، اے صبح کے روشن ستارے۔ جب 4 بجے ستارہ نکلتا ہے، جب 4 بجے ستارہ نکلتا ہے، نکلتے 4 بجے، وہ نکلتا ہی 4 بجے، نام ہی صبح کا ستارہ ہے، اس کا نام ہی صبح کا ستارہ ہے۔ میں جٹانا ترازا کام کیا، میں نے جٹوں کے ساتھ 3 سال کام کیا ہے۔ وہ تارا دیکھ کر ہم جو کام شروع کر دیتے، تارا دیکھ کر کام شروع کرتے تھے وہ 4 بجے، 4 بجے، صبح کے روز ستارے۔ صبح کے 4 بجے۔ اب خدا پر 4 سوال کرتا ہے، اب خدا 4 سوال کرتا ہے، بولو، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اس کے پاس جواب نہیں، اس کے پاس جواب ابھی نہیں، گرا نہیں، ابھی گرا نہیں،
आए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? नो तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। ये रहती अंदर ही है, ये मैं अंदर ही रहती है। तो जो कुछ दिल में भरा है वो मुंह के बाहर आता है। सो जो कुछ दिल में भरा है वो मुंह के जरिए बाहर आता दिल है। में कहता था वो तो दिल में कहता था मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो भुट्टो वज़ीर आज़म था, वजीर आजम था, वज़ीर दाखिला भी था, वजीर दाखिला भी था, वज़ीर खारजा भी था। वजीर खारजा भी था। तो इस्लामी ममालिक का ये बैंक बनना चाहता था। इस्लामी ममालिक का वो बैंक बनना चाहता था। 37 ममालिक इस्लामी ममालिक का छोटी रियासतें पाकर छोटी रियासतें डालकर मिलाकर मिलाकर 52 इस्लामी ममालिक बनते। इनके कर्जों को उतार दे, जुए फेंके, इनसे आजाद हो जाएं। आओ हम इनके कर्जों को उतार दे, जुए फेंके, इनसे आजाद हो जाएं। ज़बूर 2। आसमानी हस्ती के साथ ज़मीनी हस्ती का भी तल्लुक देखें। आसमानी हस्ती के साथ ज़मीनी हस्ती का भी ताल्लुक देखें। ज़बूर 2। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं? खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ ज़मीन के बादशाह सफ आराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें। जब भुट्टो वजीर आजम बना के ममालिक सारे मिलकर बैठ गए, कब तक इनके कब्जे में रहेंगे? हम कब तक इनके कब्जे में रहेंगे? ये कब तक हमको दबाते रहेंगे? ये कब तक हमको दबाते रहेंगे? तोड़ें, इनकी रस्सियां तोड़ें, तोड़ दें, जुए तोड़ दें। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका मजाका उड़ाएगा। खुदा ने कहका लगाया, आसमान पर खुदा ने कहका लगाया फरिश्तों के सामने। फरिश्तों के सामने ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? ये मेरी कौमें ही आखिरी मुकाबले दुनिया के आखिर तक हुकूमत करेगी। मेरी कौमें दुनिया के आखिर तक हुकूमत करेंगी इनके ऊपर। तमाम ममालिक में तेल है, तमाम ममालिक में तेल है, निकाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, साफ नहीं कर सकते, निकाल लें और साफ नहीं कर ये सकते। टेक्नोलॉजी सिर्फ मसीहों के पास है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मसीहों के पास है। वही निकालता है, वही साफ करता है। वही निकालते हैं, वही साफ करते ये हैं। निकल नहीं सकते, निकाल नहीं ये निकाल नहीं सकते। कराची के समुद्र में इतना बड़ा तेल है, कराची के समंदर में इतना ज्यादा तेल है। वो ईरान का एक नहर है पूरी, ईरान में एक नहर है पूरी, तो ईरान निकालने नहीं देता। ईरान निकालने नहीं देता। तेल सस्ता दे दूंगा, आपको तेल सस्ता दे दूंगा। अमेरिका ये तेल पे ना बैठे, अमेरिका इस तेल पे ना बैठे। ये बैठेगा मेरी लहर बंद हो जाएगी, ये बैठेगा तो मेरी लाइन बंद हो जाएगी। आगे बढ़ो। तब वो गज़ब में कलाम करता है, तब वो अपने गजब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सयून पर बिठा चुका हूँ। 1000 साल पहले, तकरीबन 1000 साल पहले, 1000 पहले, मसीह की पैदाइश से 1000 साल पहले खुद खुदावंद ताला ने पेशन गोई की है, दाऊद की ज़ुबानी की है और बुजुर्ग दाऊद की ज़ुबानी की है। बेटे को तख्त पर बिठा चुका हूँ, मैं अपने बेटे को तख्त पर बिठा चुका हूँ, बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदाबंद। को बादशाह तो पैदा हुआ है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहाँ है? अरकाने दौलत हेरोदीस बड़े घबरा गए, छोटे बड़े घबरा गए, बड़े बड़े फाल की नजूमी बुला लिए, बड़े बड़े फाल की नजूमी बुला लिए। कहाँ पैदा हुआ? कौन पैदा हुआ है? कहाँ पैदा हुआ है? कैसे हुआ? बच्चा है, बच्चा है, उसके नाम से घबरा गए, उसके नाम से घबरा गए। जब वो दोबारा आएगा, लाखों फरिश्ते, 12 किस्म का बादल, भड़कती आग, खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए होगा, बादशाहों का बादशाह, लिखा होगा कि बादशाहों का बादशाह। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। मसीह की आमद की मसीह की आमद की पहले दानियल नबी ने पेशन गोई की। वो बादलों के साथ आएगा, 12 किस्म के बादल। लिखा होगा बादशाहों का बादशाह खुदाबंदों का, लिखा होगा बादशाहों का बादशाह खुदाबंदों का खुदाबंद। मैं तो अपने बादशाह को, अपने बेटे को खुदा खुद कहे, मैं तो अपने बादशाह को, अपने बेटे को खुदा ने कहा है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस मकाम पर बिठा दिया है, पाक मकाम पर बिठा दिया है। मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावन ने मुझसे कहा
तू मेरा बेटा है। 1000 पहले ये दाऊद ने पेश हुई थी। 1000 साल पहले ये दाऊद ने पेशन गोई की थी। मजूसियों ने बाद में कहा, ये तो बहुत ही बात की बात है। मजूसियों ने, नजूमियों ने बाद में कहा, ये तो बहुत देर की बात की बात। जाने के 49 साल बाद इंजील मुकम्मल हुई। मसीह के आसमान पर जाने के बाद 49 साल बाद इंजील मुकम्मल हुई। ये पहले का है, ये पहले का लिखा हुआ है। मैं उस पर मार करूं मेरा बेटा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मैंने 12 साल मनाजरे किए। मैंने 12 साल मनाजरे किए हैं। अवार्ड ऐसे नहीं दिएगा। अवार्ड ऐसे नहीं मिला मुझे। तो नासर के साथ, बुजुर्ग नासर के साथ बड़ी रफाकत होती थी। मैं लिखता था, वो देखते थे। मैं लिखता था, वो देखते थे। एक दिन एक पेज पे मैंने 60 लाइन लिखा। एक दिन एक पेज पे मैंने 60 लाइनें लिख दी। अंधा हो जाएगा, बड़ा ऊंचा बोल। गुस्से में आ गए, कहते अंधा हो जाएगा, दूसरों को अंधा करेगा। बहुत गुस्से में आ गए। यानी 1000 पहले यह है कि एक मौलवी है, कहाँ लिखा है मेरा बेटा? ये 1000 साल पहले लिखा गया। एक मौलवी कहता है, कहाँ लिखा है कि मेरा बेटा है? खुदा कहता है, ये लिखा हुआ है, तू मेरा बेटा है। साथ है, मैं उस फरमान को बयान करूंगा। ये फरमान बड़ा ऊंचा फरमान है। ये बड़ा फरमान बहुत ऊंचा फरमान है, गहराई वाला पैगाम है, बहुत गहराई वाला फरमान है। मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावन ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, मुझसे मांग। बेटे से कहता है मांग, बेटे से कहता है मांग, मांग, मांग। बेटा कोई मरियम मुकद्दसा की बताने का जिक्र नहीं, मरियम का जिक्र नहीं। 1000 पहले, 1000 साल पहले इलाही मंसूबा था। ये एक इलाही मंसूबा था जो सिर्फ खुदा जानता था। मांग, मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के असा से तोड़ेगा। मकाशवा में लिखा है वो लोहे के आसा पर हुकूमत करेगा। मकाशवा में लिखा है वो लोहे के आसा पर हुकूमत करेगा। और कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकनाचूर कर डालेगा। कैसे करेगा? ज़िक्रिया 14 बाब। कलाम से कलाम निकलता है, कलाम से कलाम निकलता है। आलमी जंग का नक्शा क्या है? आलमी जंग का नक्शा क्या है? हाँ जी, 14 बाब ज़िक्रिया 14 बाब। मजमून लिखा है आलमी जंग का। मैंने मजमून लिखा है आलमी जंग का। वो जवानी में लिखा था। जवानी में लिखा था। रूस सरबरा बनेगा। रूस सरबरा बनेगा। 10 ममालिक उसके ज़ेरे साया होंगे। 10 ममालिक उसके ज़ेरे साया होंगे। आओ हम इनको हलाक करें। आओ हम इनको हलाक करें। मक्का में लिखा है इनकी फौज 20 करोड़ होगी। मकाशवा में लिखा है इनकी फौज 20 करोड़ होगी। भुट्टो के दौर में ये मंसूबा बन गया था। भुट्टो के दौर में ये मंसूबा बन चुका था। मुश्किल क्या है? मुश्किल क्या है? वो तैयार हो चुके हैं। वो लोग तैयार हो चुके हैं। तैयार हो चुके हैं। अभी दरियाए फरात से रास्ता नहीं दे रहा। अभी वो लोग फौज तैयार हो चुकी है, लेकिन दरियाए फरात रास्ता नहीं दे रहा। 1400 मील लंबा है। वो 1400 मील लंबा है। ये छोटा समुंदर है। ये छोटा समंदर है। खुश्क नहीं हुआ। अभी वो खुश्क नहीं हुआ। एक वक्त आएगा। कलाम में लिखा है फाक फूंक मारेगा। कलाम में लिखा है खुदा फूंक मारेगा, वो खुश्क हो जाएगा। फिर लिखा है सीटी बजाएगा, सीटी बजाएगा। फिर लिखा है सीटी बजाएगा, आओ इन पर हमला करो। तो वो सारी फौजें आ जाएंगी। तो वो सारी फौजें आ जाएंगी। आसमान से उतरेगा। उस वक्त यीशु मसीह आसमान से उतरेंगे। जंग में तो जंग करेगा। वो जंग करेगा। ज़करिया 14 बाब। देख, खुदावन का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें, और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी। वो लोग जो खुदा से दूर रहकर खुदा के शहर में जिंदगी बसर कर रहे थे, वो लोग जो खुदा से दूर रहकर खुदा के शहर में जिंदगी बसर कर रहे थे, बेइज्जत होंगे, बर्बाद होंगे, हलाक होंगे, बर्बाद होंगे, बर्बाद होगी, उनकी इज्जतें बर्बाद होगी। और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। तब खुदावंद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। और उस रोज वो कोहे जैतून पर, खुदा के पहाड़ अलग है, खुदा के पहाड़ अलग हैं, बेटे का पहाड़ अलग है, बेटे का पहाड़ अलग है, नबियों के पहाड़ अलग है, नबियों के पहाड़ अलग अभी हैं। तक मैंने मजमून लिखना शुरू किया था। अभी तक मैंने मजमून लिखना शुरू किया था, आधा लिखा। तो नाश पड़ गई, फारा हो गया।
दिमाग की नस फट गई, फालिज हो गया। पहाड़ों के बारे पहाड़ों के बारे में बड़ा कलाम है, बड़ा कलाम है, इनकी बड़ी हकीकत है, इनकी बड़ी हकीकत है। ये खुदा के पोशीदा खजाने हैं, ये खुदा के पोशीदा खजाने हैं, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। इसी में तेल में, इसी में तेल है, पानी भी है, पानी भी है, लोहा भी है, लोहा भी है, तांबा भी है। जिस मुल्क में पहाड़ नहीं होते वहाँ बारिश नहीं होती, जिस मुल्क में पहाड़ नहीं होते उस मुल्क में बारिश नहीं होती। रोकते हैं, हवाओं को रोकते हैं, ये हवाओं को रोकते हैं। कोहे जैतून, और उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम की मशरिक के में वाक़ा है, मसीह का ये पसंदीदा पहाड़ था, मसीह का ये पसंदीदा कोहे पहाड़ था। हरमोन पहाड़ पर इसकी सूरत बदल गई, कोहे हरमोन पहाड़ पर उसकी सूरत बदल ये गई। पसंदीदा पहाड़ था, ये पसंदीदा पहाड़ था, दुआया जिंदगी बसर करते हैं, यहाँ दुआया जिंदगी बसर करते हमारे थे। पास कोई ऐसा पहाड़ नहीं जहाँ बैठ कर दुआ करें, हमारे पास कोई ऐसा पहाड़ नहीं जहाँ बैठकर दुआ अपनी करें। कुर्सी को पहाड़ बना लें, अपनी कुर्सी को पहाड़ बना लें, छोटी सी चटाई बिछाकर छोटी सी पहाड़ बना चटाई को कोई बिछा जगह कर को पहाड़ बना बना लें, लें, किसी जगह को पहाड़ बना लें, लें, कुछ ठहरा तो नहीं देगा, कुछ ठहरा तो लें तो जगह। आपके बैठने पहले खुदा बैठा होगा, आपके बैठने से पहले खुदा बैठा। हमारा पहाड़ कोई नहीं है, हमारा पहाड़ कोई नहीं। बने 3-4 है, और उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़ है खड़ा होगा और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा और बस मसीह खुदावन के पाँव रखने के वक्त मसीह खुदावन के पाँव रखते वक्त पिस जाएगा, रेत बन जाएगा, पिस जाएगा, रेत बन जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ गया, पता ही नहीं लगेगा कहाँ गया। और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आजल तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदा उज़रिया के अयाम में जलजला से भागे थे, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कुछ सी तेरे साथ। लाखों फरिश्ते, मकाशवा की किताब में लिखा है लाखों फरिश्ते उसके साथ होंगे, उसके साथ होंगे, वो लड़ेंगे, वो मारेगा। जी। और उस रोज रोशनी ना होगी और अजरामे फलक छुप जाएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदामद ही को मालूम है। जब तक ये वक्त आ नहीं जाता, जब तक कि वक्त आ नहीं जाता, बाप बेटा और पाकरू, बाप बेटा और पाकरू इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे। जब ये वक्त पूरा हो जाएगा, जब ये वक्त पूरा हो जाएगा, इकट्ठे एकदम कैसे हो जाएंगे, ये इकट्ठे एकदम कैसे हो जाएंगे। पढ़वाई। पर एक दिन ऐसा आएगा कि खुद जो खुदामद ही को मालूम है, वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। और उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा, जिसका आधा बहरे मशरिक की तरफ बहेगा और आधा बहरे मगरिब की तरफ। गर्मी सर्दी में जारी रहेगा और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। उस रोज एक ही खुदावंद होगा। ये है पैगाम, ये कब इकट्ठे होंगे, ये है पैगाम कि ये कब इकट्ठे होंगे। खुदाए सलूस, फिर बाप बेटा और पाकरू ये कहे जाएंगे, बाप बेटा और पाकरू ये कहे जाएंगे। अलग काम कर रहे हैं, अभी ये अलग अलग काम कर रहे हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। तो हम इनको नहीं जानते कि क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, हम इनको नहीं जानते कि क्या क्या जिम्मेदारी। उनका काम अलग अलग है, उनका काम अलग अलग है। किताब एक है, किताब एक है, लंबाई चौड़ाई मोटाई। क्या 3 किताबें हो गई? क्या 3 किताबें हो गई? नहीं, 3 है। आप किसको किताब कहेंगे? आप किसको किताब कहेंगे? ये बदन है, ये बदन है, जान है, रूह है। आप किसको बदन कहेंगे? आप किसको बदन कहेंगे? रूह को या जान को, या रूह को या जान को या बदन को। इन्होंने लोगों को अंधा कर दिया है, इन्होंने लोगों को अंधा कर दिया है। के खुदा ने इंसान को अकल से अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने भी अंधा कर दिया। इस जहान के खुदा ने इंसान को अंधा कर दिया और कहानत ने भी अंधा कर दिया। झूठे उस्तादों ने भी अंधा कर दिया। मैंने हालेलुया का पैगाम दिया, मैंने हालेलुया का पैगाम दिया है। इंटरनेट पे गया है। 30 लोगों ने इतनी खुशी की, 30 लोगों ने इतनी खुशी की, 500 लोगों के पाँव जल गए, 500 लोगों के पाँव जल गए। मैंने कहा वो घोड़ा तो अपने पास मेरे पास भेज देना। वो घोड़ा इतराज करे, मैंने कहा कोई गोरा इतराज करे तो उसे मेरे पास भेज देना। अपने हफ्तों के अंग्रेजी जाने। मैंने सरफराज साहब से कहा है क्योंकि वो अंग्रेजी जानते हैं। ये कौन है? हाँ जी,
इब्लीस है क्या? हम इसको नहीं जानते, हम इसको नहीं हम जानते। बात तो कर रहे हैं, हम बात तो कर रहे हैं, और को ये बात से बात निकल गई, बात से बात निकली है, बात से बात निकली है, निकलती जाती है। कलाम किस तरह फैलता है? कलाम किस तरह फैलता है? ने शुरू किया, मैं जो लाइलाज बीमारियां का इलाज क्या है, हमने शुरू किया है लाइलाज बीमारी जो मैं है इसका इलाज क्या है। ये कहाँ से शुरू हुई? ये कहाँ से शुरू ये हुई? आसमान से। ये आसमान से शुरू हुई। ये बीमारी आसमान से आई है। ये बीमारी आसमान खुदा से आई है। आसमान से 60 से ज्यादा बीमारियां भेजता है। खुदा आसमान से 60 से ज्यादा बीमारियां भेजता उनके है। नाम लिखे हैं, उनके नाम जिन लिखे हुए हैं। बीमारियों को खुदा ने भेजा है, जिन बीमारियों को खुदा ने भेजा है, इलाज कौन करेगा? इलाज कौन करेगा? मेरा 2010 में नस पड़ी, 2010 में मेरी नस फटी, लाइफ पर फलवी हो गया, फालिज हो गया, टेढ़ी जुबान हुई, मैं टेढ़ा जुबान, टेढ़े हाथ हो गए, मेरे जुबान बंद हो गई। बड़े बुजुर्ग आकर देखे, बड़े बुजुर्ग आके यहाँ आ गए। 25 दिन 25 रात वो सोए नहीं, 25 दिन 25 रात वो सोए नहीं। कार्डियो जीना सिविल ने कह दिया बस आदमी खत्म। कार्डियो जिना सिविल ने कह दिया बस आदमी। 12 घंटे टेस्ट 12 घंटे तक टेस्ट होते रहे, तो खुदा ने बचा लिया। खुदा ने बचा लिया। 10 साल के बाद फिर अटैक हुआ। 10 साल के बाद फिर अटैक हुआ। दफ्तर में रखा नहीं, मैं दफ्तर में सोया हुआ था अकेला, हिचकी लग गई, हिचकी लग गई, वो बंद नहीं हो रही, बंद नहीं हो रही, उठकर बैठ गए। उठकर बैठ ये गया। अब क्यों हुआ? ये अब क्यों हुआ? कितनी देर रहेगा? कितनी देर रहेगा? खुदा के गाल पे आ गया, खुदा के गले पड़ गया मैं, हिचकी बंद हो गई। हिचकी बंद हो गई। तीसरा अटैक, तीसरा अटैक, बाहर लेटा हुआ था, बाहर में यहाँ लेटा हुआ था। 3 घंटे ऐसे तड़पा, 3 घंटे में तड़पता रहा। भाई को फोन किया, ऊपर से आ रहा, भाई को कॉल की, वो ऊपर सोया हुआ था। फराज सामने भी था, सामने ही था। इरफान उस वक्त सेमिनरी में था। तो फिर आया, फिर आया भाई। 3 बार आंखों के आगे अंधेरा आ गया, 3 बार आंखों के सामने अंधेरा आ गया। मेरी मौत थी। मेरी मौत थी। मैं कहा मैं नहीं मरना, मार के बाद। मैंने खुदा से कहा मैं नहीं मरना, मार के दिखाओ। एक कोर्स कर रहा है, एक सेमिनरी कर रहा है, एक कोर्स कर रहा है, एक सेमिनरी कर रहा है। आंखें ठीक हो गई, आंखें ठीक हो गई, गोली खाई, ब्लड प्रेशर की गोली खाई। भाई ने चेक किया, कहता है अस्पताल चलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। खुदा से बात तो करें, खुदा से बात तो करें। अयूब करता था, अयूब करता था, खुदा से, करता था, नबी करता क्या था। तेरी आंखें गोश्त की है? क्या तेरी आंखें गोश्त की हैं? जैसे 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 इंसान लेता है, ऐसे देखता है जैसे इंसान देखता है। इस मैं का इलाज क्या है? इस मैं का इलाज क्या है? हाँ जी, पढ़ो। यसाया 14 12वीं आयत से। आए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शिमाली इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूँगा। लेकिन तू जब ये बोला कि मैं हक ताला की मानिंद हूँगा, जब इसने ये कहा कि मैं हक ताला की मानिंद हूँगा, खुदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा ने बर्दाश्त नहीं किया। अब लोग इस खुदा के बराबर खड़े हैं, अब लोग खुदा के बराबर खड़े हैं, मसीह के बराबर खड़े हैं, दावे करते हैं, पेशन गोइयां करते हैं, गैब बीनी करते हैं। 6 नंबर कुरंगी, एक पास्टर वो लोगों को बातें बताता था, वो लोगों को बातें बताता था। फादर आर्थर चार्ल्स, उनके वालिद चार्ल्स साहब, वो वहाँ किसी घर दुआ करने गए थे, वहाँ किसी घर दुआ करने गए थे। तो उन्होंने बुला लिया। एक बंदा है, वो टीवी लाता है, एक आदमी आता है, वो टीवी लगाता है। चलो उससे बात करो, चलो उससे बात करो। एक घर में, आपके घर में बहुत बड़ा लश्कर है, आपके घर में बहुत बड़ा लश्कर है, बहुत बड़ा लश्कर है, बहुत बड़ा लश्कर है। तो उन्हीं के घर में दुआ कर गए थे, उन्हीं के घर वो दुआ करने गए थे। फादर साहब के वालिद साहब उनके पास आ गए। आप बताएं मेरी जेब में पैसे कितने हैं? आप बताएं मेरी जेब में पैसे कितने हैं? मटके में पानी कितना है? मटके में पानी कितना है? आप गलत बोल रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं। तू भी कुफर बकता है, तू भी कुफर बकता है। तेरी आंखें हैं। जंग 14 बाब।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 12ਵੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ और उसका नाम वाहिद होगा और यरूशलेम के जनूब में और यरूशलेम के जनूब में तमाम मुल्क जिब्बा से रिमोन तक मैदान की मानिद हो जाएगा, पर यरूशलेम बुलंद होगा और बिन्यामीन के फाटक से पहले फाटक के मकाम यानी कोने के फाटक तक और हननेल के बुर्ज से बादशाह के अंगूरी हौज़ों तक अपने मकाम में आबाद होगा और लोग इसमें सकूनत करेंगे और फिर लानत मुतलिक ना होगी, बल्कि यरूशलेम अमनो अमान से अब आबाद रहेगा। के रखेंगे कि 12 आयत के क्या कह रही है 12 आयत क्या कह रही है। और खुदावंद यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर ये अजाब नाजिल करेगा। 20 करोड़ फौज पर अजाब नाजिल होगा। 20 करोड़ फौज पर अजाब नाजिल होगा। जंग हो रही थी इराक की, जब जंग हो रही थी इराक की, ने एक बहाना ढूंढा मुझे, मैंने तेरा मुआयना करना एटमी प्लांट का। तो अमेरिका ने कहा एटमी प्लांट का मुआयना करना, मैंने तेरे एटमी प्लांट का मुआयना करना है। ये गैस तैयार कर रहा है, तो ये गैस तैयार कर रहा है। वो कह रहा कि नहीं गैस यार, ये गैस तैयार कर रहा है। वो कहता कि हम गैस नहीं तैयार कर रहे, पर अमेरिका कहता कि तू गैस तैयार कर रहा है। बहाना ढूंढ रहा था। देखो क्या होगा, खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा, आंखें चश्म करों के गल जाएंगी। खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा और उनकी आंखें चश्म खानों में गल जाएंगी और उनकी जुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस रोज़ खुदावन की तरफ से उनके दरमियान बड़ी हलचल होगी और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। साहिब जंग है, यस्सू साहिब जंग है, साहिब इख्तियार है। उसके कहने सब कुछ हो सकता है, उसके कहने से सब कुछ हो सकता है। और उस रोज़ खुदावन की तरफ से उनके दरमियान बड़ी हलचल होगी और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ हाथ उठाएंगे। और यहूदा भी यरूशलेम के पास लड़ेगा और इर्द गिर्द की सब कौमें, यहूदियों की फौज अलग है, इसराइलियों की अलग है। मैंने ड्यूटी पे एक बार आप इसराइलियों को बुरा कहते हैं, एक बार यहूदियों को बुरा कहते हो। यार मुझे नहीं पता, आप बताएं। आप बताएं। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। इनके बादशाह अलग है, उनके बादशाह अलग है। इनके बादशाह अलग हैं, उनके बादशाह अलग हैं। इनका किरदार है, उनका अलग है। इनका किरदार अलग, उनका अलग है। खुद भी जुड़ जाते हैं जंग में, कभी कभी खुद भी जुड़ जाते हैं जंग में। दूसरे मुल्क इकट्ठे होते हैं, ये फिर एक हो जाते हैं। जब दूसरे मुल्क इकट्ठे होते हैं तो ये दोनों फिर एक हो जाते हैं। राम के छठे पेड़े, राम के छठे गाँव, खान पीन बकरे, खाना पीना अलग, लड़ाई इकट्ठे। घोड़ों, खच्चरों, ऊँटों, गधों सब है बानों पर बोलो। और घोड़ों, खच्चरों, ऊँटों, गधों, तोपें, इनकी तोपें, इनके टैंक, इनके जंगी जहाज, उनके पुर्जे जाम हो जाएंगे, उनके पुर्जे जाम हो जाएंगे। जहाज उड़ नहीं सकेंगे, जहाज उड़ नहीं सकेंगे, टैंक दौड़ नहीं सकेंगे, टैंक दौड़ नहीं सकेंगे। सब हैवानों पर भी जवान लश्करगाहों, जो उन लश्करगाहों में होंगे वही अजाब नाजिल होगा। और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल बसाल बादशाह रब्बुल अफाज को सिजदा करने और ईद क़याम मनाने को आएंगे। कुर्बानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, रोज़े ख़त्म हो जाएंगे। तमाम अक़वाम सारियां कौमां झुक झुक जावन, डर रखन गियां उसे फिर ये मक्का बन जाएगा। सब जाएंगे, लिखा है सब जाएंगे। नहीं जाएंगे उसे नहीं बहेगा। जो नहीं जाएंगे वहां पर बारिश नहीं होगी। 19वीं आयत, अहले मिस्र और उन सब कौमों की जो ईद क़याम मनाने को ना जाएं यही सज़ा होगी। उस रोज़ घोड़ों की घंटियों पर मरकूम होगा, जहाज का सायरन, टैंक का सायरन, वो बंद हो जाएगा। उनकी जितने सायरन होंगे बंद हो जाएंगे। खुदावन के मुकद्दस अब ये हमारे काम आएंगे। खुदावन के लिए मुकद्दस और
खुदावन के घर की देगें मज़बा के प्यालों की मानिद मुक़द्दस होंगी, बल्कि यरूशलेम और यहूदा में की सब देगें रब्बुल अफ़वाज के लिए। ये कम से कम 4 घंटे का ये पैगाम है, 14 बार। ये कम से कम 4 घंटे का पैगाम है, 14वां बाब, जो मैंने इशारतन बताया है। मैं रूस के अंदर, जापान के अंदर, चीन के अंदर, इंडिया के अंदर, बल्कि जितने मुल्क हैं, बल्कि जितने ममालिक हैं, हमारे पास एटमी प्लांट हैं, मैं सब के अंदर दाखिल हो चुकी है, मैं सबके अंदर दाखिल हो चुकी है, ये इकट्ठे हो जाएंगे। 10 एटमी प्लांट होंगे, हमारे 10 एटमी प्लांट होंगे। होंगे। एटमी प्लांट क्या करेंगे? इनके 2 एटमी प्लांट क्या करेंगे? तबाह कर देंगे। यीशु तबाह कर देगा। ठीक है, जब मैं तो हक ताला की मानद दूंगा, जब मैं हक ताला की मानद हूँगा। जब ये बोला फिर खुदा ने सारे इख्तियार खत्म कर दिया। जब ये बोला तो खुदा ने सारे इख्तियार खत्म कर दिए। लेकर मसीह को उहदा दे दिया। ये उहदा मिकल मसीह पर चला गया, मिकल मसीह पर चला गया, मिकाइल फरिश्ते के पास चला गया। इसको पटक, जोर से पटक। आसमान तो ब्लाक दिखे ना, छत से ब्लाक गिरे, नुकसान करेगा। तो जो आसमान से प्रेशर से, और जो आसमान से प्रेशर से आएगा, ये पटका गया है। तेरी मैंने तुझे पटका, तेरी मैंने तुझे पटका। आज जितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, आज जितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, रूहानी है, मैं उनको बर्बाद कर, उनकी मैं उनको बर्बाद कर, मैं